सो बच्चों क्विक रिवीजन ऑफ वेक्टर देखो जरा। क्वांटिटीज दो तरीके की होती है, क्वांटिटीज दो तरीके की होती है, एक स्केलर, दूसरी वेक्टर। ओके, स्केलर क्वांटिटी ओनली डिफाइंड फॉर मैग्नीट्यूड्स, only defines for magnitude, and this is defined for magnitude and plus direction both. ओके, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए सुनिए, यस सर। किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन जो है, रिप्रेजेंटेशन अगर कुछ एग्जांपल्स देखे जाएं स्केलर क्वांटिटी के लिए, तो आप बोल सकते हो वर्क, टाइम, ओके, डिस्टेंस, speed, the etc. These are the examples of scalar quantity. And vector quantity example like force, acceleration, displacement, velocity, or some other. These are the etc. These are the examples of vector quantity. Clear my dear friends? किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, representation of vector. The vector is represented by an arrow with the help of arrow, and the head part of the arrow is called, the head part of the this front part of the arrow is called head, and the rear part of this arrow is called tail. My dear friends, where this is the geometrical representation, and in mathematically it is represented by a with vector. अगर किसी भी अल्फाबेट्स के ऊपर अगर वेक्टर लग जाए तो इसे बोलते हैं वेक्टर ए। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? Smallest magnitude have small arrow and larger magnitude have large area. So this is vector B, this is vector A. So we can say that the magnitude of vector A is greater than the magnitude of vector B. मेरे दोस्तों, types of arrow vectors, types of vectors. Vectors basically कई types के होते हैं, उसमें से सबसे पहला वेक्टर है इक्वल वेक्टर। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों सेम हो, वो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सो वेक्टर ए, if the vector A and vector B both are in along the same direction and magnitude of vector A say मान लो 3 unit, so must be vector B magnitude is also 3 unit. So the magnitude and the vectors, the magnitude and angles, directions both are same. ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों सेम हो, उनको हम क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स। बच्चों, इक्वल वेक्टर्स में ही एक नया वेक्टर जोड़ा गया है जिसका नाम है पैरेलल वेक्टर। Parallel vectors are those vectors which have the same directions but magnitude may or may not be same. For example, suppose this is vector A and this is vector B. So we can say that the vector A and vector B both are along the same direction. दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में है मेरे दोस्तों, बट इनका मैग्नीट्यूड आपको दिख रहा है, वेक्टर बी का साइज बड़ा है, वेक्टर ए का साइज छोटा है। सो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है वो वेक्टर ए से ज्यादा है। सो वी कैन से दैट कि सच टाइप ऑफ वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर। या ऑफ कोर्स all equal vectors are parallel vector. All equal vectors are parallel vector, but reverses is not true. Reverse is not true. Reverse is not true means कि all parallel vectors are not equal vectors. Clear my dear friends? Okay. Let us see the next vector. Next vector is opposite vector. नाम से ही लग रहा होगा, अपोजिट वेक्टर मींस ऐसे वेक्टर्स वो जिनकी डायरेक्शंस क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट्स। ठीक है ना?
Parallel vectors can be converted into collinear vectors. Yes, parallel vectors collinear vector हो सकते हैं, बिल्कुल सही आदित्य। आदित्य ने बोला parallel vectors can be converted into collinear vector. Yes, collinear means, मेरी बात सुनो, if you want to discuss about the collinear vectors, so अभी देखते हैं। collinear का meaning है collinear vectors ऐसे वेक्टर्स जो एक ही डायरेक्शन में हो, एक डायरेक्शन में एक ही लाइन में हो, जैसे दिस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. So vector A and vector B both are along the same line and these are along the same direction. So all type of these are parallel vector also. ठीक है ना? So such type of vectors is called collinear vector. Clear, my dear friends? Yes. Okay. अब बात करते हैं अपोजिट वेक्टर की. Opposite vector. Opposite vector are those vector have opposite directions to each other. जैसे कि मान लो बच्चों ये वेक्टर A है और ये वेक्टर बी है, तो दोनों वेक्टर्स अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में हैं, तो सच टाइप ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड अपोजिट वेक्टर्स. ओके, these are also called anti parallel vectors. Anti parallel vector. Opposite vectors, the angle between A and B, opposite vector means कि angle between vectors is always 180 degree. Okay, let us see the next vector is unit vector. So the unit vector, ऐसे vectors जिनका magnitude, these vectors have one magnitude. ठीक है, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो उनको यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं. मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप. अगर किसी अल्फाबेट के ऊपर अगर के कैप लगा हो तो सच टाइप ऑफ कैप लगा हो, टोपी पहने हुए हो, कैप पहने हुए हो, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर. इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए. मेरे दोस्तों हमारे पास क्या होता है, यहां पर एक इसी का एक सच टाइप ऑफ वेक्टर है जैसे कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर. ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर. मेरे दोस्तों ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मीनिंग ये है कि अगर किसी, इसको 3D वेक्टर भी बोलते हैं, 3 डायमेंशनल वेक्टर. ठीक है ना, 3 डायमेंशनल वेक्टर. इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कह रहा हूं तो हमारे पास एक एक्सेस, दूसरी एक्सेस और तीसरी एक्सेस, ये 3 एक्सेस होती है. एक एक्सेस को हॉरिजॉन्टल एक्सेस जनरली एक्स एक्सेस बोला जाता है. एक एक्सेस वर्टिकल एक्सेस होती है जो वाई एक्सेस कहलाती है, और एक होती है प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सेस जो जनरली जेड एक्सेस. मेरे दोस्तों एक्स एक्सेस का यूनिट वेक्टर, एक्स एक्सेस की जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो कहलाता है आई. सो एक बात और ध्यान रखने वाली है कि यूनिट वेक्टर गिव्स द आइडिया अबाउट, gives the idea about the डायरेक्शन. ये एक डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है. जैसे एक्स एक्सेस की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, आई कैप. तो एक्स एक्सेस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप. वाई एक्सेस का यूनिट वेक्टर बच्चों क्या होता है, जे कैप. और जेड एक्सेस का यूनिट वेक्टर होता है के कैप. अगर मेरे से कोई पूछेगा कि यार आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, सो वी से दैट 1. ठीक है, z का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड इज आल्सो 1 और के कैप का भी मैग्नीट्यूड इज आल्सो 1 because they are unit vectors. These are unit vectors. So unit vectors have one magnitude. Suppose if you want to draw the any point, locate a point P from the origin. ठीक है, अगर कोई P पॉइंट को आप लोकेट करना चाह रहे हो ऑरिजिन से, तो यार ये कोई दूरी मान लो इसका A, B, C, इसके कोऑर्डिनेट है A, B, C. तो अगर आपको कोई भी वेक्टर ड्रॉ करना है, कोई भी वेक्टर ड्रॉ करना है तो वो वेक्टर कहलाता है ऑर्थोगोनल वेक्टर. जैसे OP वेक्टर इज द ऑर्थोगोनल वेक्टर. ऑर्थोगोनल
गोनल वेक्टर और 3D वेक्टर्स, 3 डायमेंशनल वेक्टर। तो इसको लिखने के लिए हमें करना क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मतलब आपको एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट पता हो, उनको आप लिख दीजिए यहाँ पर, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, और उनके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर आपको जो वेक्टर डिफाइन होता है वो कहलाता है 3D वेक्टर। फॉर एग्जांपल, ये पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है आपको दिया गया है ए, वाई कोऑर्डिनेट जो बी और जेड कोऑर्डिनेट सी। सो हम कहेंगे यहाँ पर ओपी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर मेरे से मान लो एक पॉइंट यहाँ पर P ले लिया गया, यहाँ Q ले लिया गया, यहाँ R ले लिया गया। P के कोऑर्डिनेट है 3, 1, 2, इसके कोऑर्डिनेट है 4, 2, -1, और इसके कोऑर्डिनेट है मान लो 2, 0, 3। सो मेरे दोस्तों, जब ये आप OP वेक्टर, OQ वेक्टर और OR वेक्टर इनको लिखोगे तो OP वेक्टर अब इस केस में कितना आ जाएगा, OP वेक्टर कितना आ जाएगा, इट्स अ 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। OQ वेक्टर कितना आ जाएगा, OQ वेक्टर कितना आएगा, x1 कोऑर्डिनेट 2i कैप, y1 कोऑर्डिनेट 0 तो प्लस 0j कैप प्लस 3k कैप। 3 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 2i कैप प्लस 3k कैप। एंड नाउ OR वेक्टर इज व्हाट, इट्स अ 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। सर इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, नहीं, इनका कुछ नहीं निकालते, इनका क्रॉस, ये तो बस अभी हम ऐसे निकालते हैं ना। अभी निकालेंगे तो बाद में बात करेंगे ना, अभी तो हमने कुछ भी तो टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर। सो दीज आर द ऑर्थोगोनल। अगर इनका यूनिट वेक्टर निकालने को आ जाए, मान लीजिए ओपी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, ऑर्थोगोनल यूनिट, तो क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, ओपी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर। सो अगर आप किसी भी वेक्टर पे मॉड लगा देते हो, मॉड मतलब इस तरीके के दो डंडे खींच देते हो, तो ये कहलाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर। यस विपुल, टेल मी। सर आप दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं ना? हमेशा नहीं होते, ऐसा जरूरी नहीं है। कोप्लेनर का मीनिंग है कि वो एक ही प्लेन में होने चाहिए, ये सर एक तो ही दो प्लेन। हाँ, तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होने चाहिए ना? हमेशा क्यों होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, दो यूनिट वेक्टर्स ऑलवेज, जैसे कि आई कैप और जे कैप, दीज आर इन द सेम प्लेन। लेकिन अगर एक मान लो ये वेक्टर ड्रॉ हो गया और दूसरा ये वेक्टर ड्रॉ हो गया जे के कैप में, तो ये जो वेक्टर है ये इस कैप में है, ये इस, तो ये अलग प्लेन में है, ये अलग प्लेन में है, दोनों अलग अलग वेक्टर्स है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो दीज आर नॉट कोप्लेनर वेक्टर्स। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है ना, समझ गए विपुल जी। यस सर। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, इट्स मे और मे नॉट, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर। चलिए, तो ओपी मैग्नीट्यूड, ओपी वेक्टर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर मींस कि ओपी वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं तो सबसे पहले ओपी वेक्टर को लिखिए। ओपी वेक्टर क्या था, ओपी वेक्टर क्या था हमारे पास, ए आई कैप प्लस बीजे कैप प्लस सी के कैप, मैंने ये निकाला। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। सबसे पहले आई का कॉफिशिएंट चेक करेंगे, मतलब आई के साथ मल्टीपल में क्या है, ए, तो यहां पर लिखेंगे आई का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो कॉफिशिएंट, स्क्वायर ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप प्लस स्क्वायर ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ जे कैप प्लस स्क्वायर ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। एक बार आई का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप का स्क्वायर, कॉफिशिएंट का स्क्वायर। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल, जैसे यहां पर ओपी 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ओपी वेक्टर ये था 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप वेक्टर। चलिए, इसका मैग्नीट्यूड बताइए कितना है। ओपी वेक्टर था हमारे पास 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, बोलो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा।
इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा। तो क्या करना है, कॉफिशिएंट ऑफ आई का होल स्क्वायर कितना हो गया 9, जे का 9 कितना है 1, 2 का 1 4, कितना आ गया 4 बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ रूट 14 14। क्लियर। चलिए OQ देखिए, OQ कितना है, OQ है 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 3k कैप। चलो इसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना आएगा। OQ वेक्टर 2i कैप, OQ वेक्टर है आपके पास 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 3k कैप। चलो बोलो क्या लिखूं। 4 2 square plus 3 square. सर रूट 13 रूट 13 स्क्वायर रूट ऑफ 13। कोई कुछ कह रहा था क्या। हाँ जी, नहीं कह रहे। चलिए इसी तरीके से कोई भी, अब देखो जरा एक वेक्टर और एक वेक्टर ऐसे जनरल लेके यहां दिखाता हूं मैं। अगर मान लो बच्चों ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है, जैसा कि आपको दिख रहा है। अगर एक पॉइंट मैंने यहाँ पी लिया, पी की जगह आप कोई और पॉइंट ले लो, से इस बार ए ले लेते हैं। ए लिया, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट बोलूं कि बच्चों इसके कोऑर्डिनेट 2 3 4, ये कोऑर्डिनेट है 2 3 4, तो बताओ इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा ओ ए कैप। तो क्या करना चाहिए हमें, ओ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर, ये करना। तो ओ ए वेक्टर कितना होगा, चलो कोई एक बच्चा बताओ ओ ए वेक्टर कितना होगा। 2i cap plus 3j cap plus 4k cap. बहुत बढ़िया निरंजन, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और बच्चों इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट 29 तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 4 प्लस 9 प्लस 16, हाउ मच, इट्स स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो इसका यूनिट वेक्टर बच्चा कितना आ गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 29। लिखना आ गया बच्चों यूनिट वेक्टर, यूनिट Yes. वेक्टर Yes, लिखना sir. आ गया। Yes, yes. ओके 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 ओके, चलिए अब देखते हैं यार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अभी सिर्फ हम देख रहे हैं टू वेक्टर्स। तो हमारे पास टू वेक्टर्स को ऐड करने के दो मेथड्स होते हैं। एक होता है आपके पास, और भी बहुत सारे वेक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि नल वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, कोप्लानर वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, कोलिनियर वेक्टर्स, जैसे परपेंडिकुलर वेक्टर्स, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बट दीज आर वेक्टर्स बहुत आसानी से नॉर्मली पता होते हैं हमें, ठीक है। तो इनके लिए मैं इतना ज्यादा कुछ करना नहीं है, ये आप अपने नोट्स से देख सकते हो। हमें यहाँ पर जो जो पढ़ना है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम देख रहे हैं। क्लियर बच्चों, हेलो, Yes, sir. Clear. एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो हमने देखा था, हम यहाँ पर कौन सा एडिशन पढ़ रहे हैं बच्चों, एल्जेब्रिक एडिशन पढ़ रहे हैं। रिवीजन में हम एल्जेब्रिक एडिशन पढ़ते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पर ज्योमेट्रिकल नहीं पूछा जाने वाला। आप सोचो ना, आपसे पूछा जाने वाला है क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो नहीं पूछा जाने वाला ना। तो एल्जेब्रिक दो तरीके के मेथड पढ़ाए थे मैंने आप लोगों को। एक पढ़ाया था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड, पैरेललोग्राम मेथड, और दूसरा पढ़ाया था हम लोगों ने आपको कौन सा मेथड, लॉ ऑफ ट्रायंगुलर एडिशन, ट्रायंगुलर एडिशन या ट्रायंगुलर मेथड, ट्रायंगुलर मेथड। मेरे दोस्तों, अगर किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड किया जा रहा है तो बस इतना आपको पता होना चाहिए कि एडिशन के दौरान हम क्या करते हैं, फर्स्ट वेक्टर का हेड अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, अगर वेक्टर ए में मान लो ऐसे वेक्टर बी को ऐड किया गया है बच्चों, तो ऐड करते वक्त ये ध्यान रखते हैं कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मिलना चाहिए, तभी एडिशन होगा। पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मिलना चाहिए, तभी एडिशन होगा। सो वेक्टर ए और वेक्टर बी जब ऐड हो जाएंगे, सो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस ही उनका सम रिप्रेजेंट करती है। क्लियर मेरे दोस्तों, हाँ ना बोलना पड़ेगा भैया। दो वेक्टर्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मिलता है, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मिलता है। तो यहाँ पर एडिशन हो रहा है, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मिल रहा है, सो दिस इज द एडिशन प्रोसेस और समेशन
और रिजल्टेंट जो होगा इनका वो पहले वेक्टर के टेल और दूसरे वेक्टर के हेड के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस के बराबर होता है। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? Yes. Yes, sir. हाँ, सो इस बेसिस पर हम बात करते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड्स की। सो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड इज सेज दैट इफ टू वेक्टर्स लाइज ऑन द वन पॉइंट साइमल्टेनियसली, अगर दो वेक्टर्स ऐसे हैं, एक वेक्टर p और वेक्टर q, दोनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं एंड दे बोथ वेक्टर्स शोज द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, अगर ये दो वेक्टर एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब इनके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो हम बोलेंगे कि इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा मेरे बच्चों, इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इसके डायगोनल को इंडिकेट करेगा। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? एक बार फिर से सुनते हैं। इफ टू वेक्टर्स x on a one point simultaneously, अगर दो वेक्टर्स एक साथ एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, so we can say that we always use law of parallelogram methods. That means when two vectors shows the adjacent side of a parallelogram, then its resultant is shows a डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो बच्चों यहां से बड़ी आसानी से आप ये बता सकते हो कि इसका जो डायगोनल आने वाला है r इज इक्वल टू वेक्टर वेक्टर p प्लस वेक्टर q, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है बच्चों वेक्टर r, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, है ना बच्चों? ये इसका मैग्नीट्यूड होता था। ये आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि ये जो रिजल्टेंट एंगल है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये जो एंगल अल्फा बना रहा है, ये कितना होगा? सो मेरे दोस्तों ये एंगल अल्फा जो है वो होता है tan इनवर्स q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। याद रखना, p वेक्टर से अगर पूछे, अगर नीचे वाले वेक्टर से पूछ रहा है, अगर बच्चों ऊपर वाले वेक्टर से पूछा है उसने b वेक्टर से, बीटा एंगल ऊपर वाले वेक्टर से, तो ऊपर वाले वेक्टर से बीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स p sin थीटा अपॉन q प्लस p cos थीटा। मेरे दोस्तों ये बात ध्यान रखना, दिस एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम p वेक्टर and this angle is made by the resultant vector from q. Clear my dear friends? Yes, sir. Yes, sir. Triangular method is sir. when the two vectors are lies one by one, एक के बाद अगर दूसरा वेक्टर अप्लाई होता है तो we use always triangular method like this. Suppose this is the vector a plus sine, this is vector b, and vector b makes an angle theta from horizontal, then always use a triangular method. So this is vector a, दो वेक्टर्स को तभी जोड़ सकते हैं जब पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मिलेगा। सो ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, तो ये बन गया एंगल थीटा। सो दिस वेक्टर इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर। अगर ये एंगल थीटा है तो जनरली आप देख पा रहे होगे कि इसका जो r आएगा, इसका r जो आएगा, r इज इक्वल टू, ये भी सेम आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बस याद रखना हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है, ना कि किसी एंगल। ठीक है ना बच्चों? दो वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, ऑलवेज ऐसे लिया जाता है। इस केस में भी रिजल्टेंट एंगल के लिए सेम फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, सेम वही b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो ये है आपका ट्रायंगुलर मेथड। आप ये याद रखिए, ओवरऑल ये याद रखिए, अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना हो ना, दो वेक्टर्स को ऐड करना हो कैसे भी, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, चाहे साइमल्टेनियसली लगा हो या कैसे, आप ऑलवेज एक ही फॉर्मूला यूज करना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बस ध्यान रखना थीटा का, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। नहीं दिया है तो निकालो, नहीं दिया है तो निकालो। समझ में आई बात? जब तक ए और बी के बीच का एंगल नहीं निकलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड नहीं निकलेगा।
क्लियर मेरे दोस्तों, समझे यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. संख्या बहुत ज्यादा है। ओके, इस वेक्टर को समझने के बाद अगर मान लो एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स आ जाए तो हम क्या करते हैं, रिजोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले रिजोल्यूशन समझते हैं क्या होता है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, अगर वेक्टर की बात करी जाए, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है। सो द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along the direction of vector b, along the direction of vector b, इसका मीनिंग ही यही होता है कि आपको क्या किया गया है, आपका क्या किया गया, रिजोल्यूशन किया गया। अगर मैं किसी भी वेक्टर की वैल्यू किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शंस में निकालूं तो वो जो वैल्यू होती है वो रिजोल्यूशन कहलाती है। तो बच्चों इसका आंसर कितना आता है, तो आपको ए का मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए। सपोज करो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है वो ए है, ए कॉस थीटा, जितना भी एंगल है इन दोनों के बीच में, इनटू यूनिट वेक्टर बी कैप, बस यूनिट वेक्टर बी कैप, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर बी कैप। अगर कोई आपसे ये पूछे कि भैया इसी वेक्टर को ऐसे फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, वेक्टर बी और वेक्टर ए, आप पूछे कि भैया वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी है, तो बताओ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए की डायरेक्शन में वेक्टर बी की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या करेंगे बच्चों, बी बी कॉस थीटा थीटा होगा तो क्या करेंगे, बी कॉस थीटा ए कैप। क्लियर मेरे दोस्तों, क्लियर, ए कैप, सॉरी Yes, sir. ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखते हैं, अगर ये प्लेन है, मान लो एक्स और वाई प्लेन है, अगर ये एंगल मान लो बच्चों, ये एंगल, ये वेक्टर है ए, वेक्टर ए है, वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड भी आपको ए दिया गया है, ये एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है, तो बताओ इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, एक्स कंपोनेंट कितना होगा बच्चों, ए एक्स वेक्टर कितना आ जाएगा, तो ए मैग्नीट्यूड एंगल कितना बता रहे, थीटा, तो कॉस थीटा, और एक्स कैप का यूनिट वेक्टर क्या होता था बच्चों, आई कैप इंटू आई। क्लियर। अच्छा वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चों, वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो अगर ये एंगल थीटा है तो बताओ वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा, वाई एक्सिस से ये एंगल कितना बनाएगा, 90 माइनस थीटा। बहुत बढ़िया, तो y कंपोनेंट कितना मिल जाएगा, ए वाई वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस 90 माइनस थीटा टी कैप, और कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, sin थीटा ए साइन थीटा जी कैप। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? Yes, sir. चलिए अगर एक बात सुनिएगा, यहाँ पर मान लीजिए कोई वेक्टर ऐसा है, वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड के कैप, तो याद रखिए एंगल मेड बाय दिस वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सिस, एंगल मेड बाय दिस वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर cos थीटा है तो cos थीटा बराबर होगा कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। मेरे दोस्तों बताओ ये क्या लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, रियली सिंपल है ना, इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर बच्चों कोई वेक्टर लेते हुआ, कोई भी वेक्टर ऐसा, कोई भी इस x 3 डायमेंशनल वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप में, तो बच्चों ये वेक्टर एक ड्रॉ किया गया है ओए वेक्टर, जो कि ए वेक्टर आपको वैल्यू मैंने दे दी एक्स आई कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड कैप, तो ये एक्स एक्सिस से कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा जिसके वैल्यू थीटा होगी। तो अगर आपको थीटा निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए, बस कोफिशिएंट ऑफ आई कैप देखना है डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लगाना है।
बस, और कुछ नहीं। cos थीटा इज इक्वल टू, अगर ये y एक्सिस से एंगल चेक करने हैं आपको, y एक्सिस से ये एंगल कितना बनाएगा बीटा, तो cos बीटा बराबर क्या करना है, y डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर मेरे दोस्तों, क्लियर। और इसी तरीके से अगर z एक्सिस से देखना है, मतलब गामा देखना है, तो cos गामा बराबर क्या लिखना है, z डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, फॉर बेटर क्लेरिफिकेशन आई वांट टू सी द एग्जाम्पल। तो बच्चों अगर एक एग्जाम्पल लेके समझते, एग्जाम्पल ये है कि अगर मान लीजिए बच्चों एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए जो है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अब मेरे को बताओ ये एक्स एक्सिस से जो एंगल थीटा बना रहा है cos थीटा, वो कितना करोगे, कितना लिखोगे, बोलो बोलो बोलो, खुद से बोलो, cos थीटा कितना आएगा। एक और बार, कौन से एक्सिस से? एक्स एक्सिस से, एक्स फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स तो एक्सिस, x अपॉन एक्स एक्सिस, सोचो सोचो सोचो। रूट रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5। तो 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 रूट 2। ये आ रहा है 250. 3 अपॉन 5 रूट 2 आ रहा है सबका। यस सर। तो cos थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 रूट 2, या फिर कुछ लोगों का आ रहा होगा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 3 अपॉन 5 रूट 2। दोनों का मीनिंग एक ही है ना बच्चों। अच्छा y एक्सिस से बताओ, y एक्सिस से cos बीटा कितना मिलेगा, 4 by 5 5 root 2 4 अपॉन 5 root 5 रूट 2। और z एक्सिस से 5 upon 5 5 root upon 5 root 2. 1 by 1 root 5 अपॉन 5 रूट 2, दैट इज कॉल्ड 1 बाय रूट 2। 1 बाय रूट 2 कब होता है, जब गामा की वैल्यू क्या हो 45। क्लियर बच्चों, समझ 45. गए। यस चलो अब बात करते हैं एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। एडिशन पॉलीगॉन लॉ, मोर देन 2 वेक्टर्स, पॉलीगन वेक्टर है ना, पॉलीगन पॉलीगॉन मेथड है ना, मोर देन 2 वेक्टर्स। चलिए वेक्टर्स, तो सबसे पहला आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो कंपोनेंट मेथड, हम अलजेब्रिक सॉल्व कर रहे हैं तो एक तो कंपोनेंट मेथड लगाते हैं, कंपोनेंट मेथड यूज करते हैं। दूसरा करते हैं एडिशन ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, एडिशन ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल वेक्टर। माय डियर फ्रेंड्स, आप जरा ध्यान से सुनिए, कंपोनेंट मेथड्स में हम क्या करते थे, हमें जो भी वेक्टर्स दिए गए, जितने भी वेक्टर्स, उन सबके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में कंपोनेंट निकाल लेंगे। क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस हो जाएगी, एक वाई एक्सिस हो जाएगी और एक जेड एक्सिस हो जाएगी। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हमें ये जितने भी ये वेक्टर्स दिए गए हैं, जितने भी वेक्टर्स, मान लो फॉर एग्जांपल वेक्टर ए दिया गया है, वेक्टर बी दिया गया है, वेक्टर सी दिया गया है, ऐसे ये 3 वेक्टर्स हैं। मान ये 3, ए वाला अल्फा एंगल बना रहा है, बी वाला बीटा एंगल बना रहा है और सी वाला जो है वो गामा एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस। और वाई जेड एक्सिस से ये सब परपेंडिकुलर, सब प्लेन, जेड एक्सिस जो है प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो जेड एक्सिस को हटा देते हैं। ठीक, ऐसे समझ लो, ऐसे। अब इनका सम करना हो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले समेशन ऑफ एक्स वेक्टर लगाएंगे। एक्स वेक्टर में क्या लिखोगे, ए, इनका कंपोनेंट करो तो कॉस अल्फा लिखेंगे, अरे बोलो, प्लस बी कॉस अल्फा बीटा प्लस सी कॉस गामा और सब में आई कैप। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से y एक्सिस के सारे कंपोनेंट y एक्सिस के लॉन्ग कर देंगे, तो क्या हो जाते हैं y एक्सिस के लॉन्ग, a साइन अल्फा प्लस b साइन बीटा प्लस c साइन cos गामा। साइन गामा ना,
इज इनटू Yes, sir. जब J इनको cap. कैलकुलेट करोगे आप तो एक्स वेक्टर निकाल लोगे और वाई वेक्टर निकाल लोगे, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ एक्स वेक्टर प्लस समेशन ऑफ वाई। क्लियर? और अगर इनका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, याद रखना। ठीक है? और बच्चों अगर एंगल निकालना हो अल्फा रिजल्टेंट एंगल, तो क्या करते हैं, tan इनवर्स समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ x, बस और कुछ नहीं करना। सो वन बाय वन स्टेप्स ध्यान रखिएगा। ये रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट एंगल को, रिजल्टेंट एंगल जो वेक्टर है ये बात करता है मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट की, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट। और ये बात करता है रिजल्टेंट वेक्टर की, रिजल्टेंट वेक्टर की। मेरे दोस्तों याद रखने का बेस्ट तरीका है, अगर आपको मैग्नीट्यूड्स दिए गए हैं, एंगल्स पता हैं तो कंपोनेंट्स कर लीजिए। अगर नहीं पता है, एंगल और मैग्नीट्यूड नहीं पता है और इस फॉर्म में दिए गए हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है ना। एक्स ए बी वेक्टर दिया गया है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और इसी तरीके से सी वेक्टर्स अगर दिए गए हैं x3 i कैप प्लस y3 j कैप प्लस z3 k कैप, तो इनको ऐड कर दीजिए। इनको ऐड करना ही वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c कहलाता है, जिसमें आपको करना क्या है, i वाले जितने हैं सब एक साथ ऐड कर दीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 i कैप प्लस इसी तरीके से बेटा z एक्सेस वाले जितने आए हैं उनको ऐड कर दो, y एक्सेस वालों को y1 प्लस y2 प्लस y3 j कैप, और k कैप में जितने हैं z1 प्लस z2 प्लस z3 k कैप। तो ये जो वेक्टर मिल जाएगा वो ऐसा मिल जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 i कैप प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 j कैप प्लस z1 z2 z3 k कैप, z1 z2 z3 k कैप। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? बोलो भाई आसान। Yes, sir. Yes. Yes, तो sir. अगर Clear. ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स दिए गए होंगे तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना है, और अगर आपको दिए गए हों कैसे वेक्टर्स, अगर आपको मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल्स दिया गया है तो बच्चों आप उस हिसाब से मल्टीप्लाई करो। हाँ बच्चा पूछो, क्या पूछ रहे थे? टेल मी। हेलो हेलो, चलिए सब्ट्रैक्शन देखते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। बच्चों मैं आपको डायरेक्ट मेथड समझाता हूं, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे हम लोग। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स को घटाया गया, वेक्टर ए और वेक्टर प्लस की जगह माइनस वेक्टर बी किया गया, ऐसे, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग तुम्हें बिल्कुल नहीं लगाना। आपको क्या करना है, बस यहाँ क्या करना है, वेक्टर ए ऐसे लिखा, वेक्टर ए अगर आपके पास ये था, वेक्टर ए बच्चों ऐसे है, जरा ध्यान से सुनना, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, प्लस का ऐसे साइन माइनस बी वेक्टर। अगर वेक्टर बी पॉजिटिव इस डायरेक्शन में है तो नेगेटिव इधर की तरफ हो जाएगा, अगर ये दोनों ऐड करने पर यही वैल्यू वापस में मिलेगी तो ये आ जाएगा माइनस बी वेक्टर इधर की तरफ, बस और कुछ नहीं करना। ये जो है माइनस बी वेक्टर। अब देखो करना कैसे, मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करना है। वरद इक्विलिब्रियम का मीनिंग यहाँ पर नहीं है ना, इक्विलिब्रियम जब फोर्स पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, तो जिस जहां से आप इस चीज को लेकर आ रहे हो वो गलत जगह से लेकर आ रहे हो। क्लियर वरद जी? हेलो वरद। Yes, sir. इक्विलिब्रियम फोर्स में होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि मतलब रुका हुआ, ठीक है, तो वो सब फोर्स में पढ़ेंगे ना, यहां से क्या मतलब, वेक्टर में तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता ना। हेलो, Yes, sir. क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो आपको Sir, एक करना, क्वेश्चन, हाँ पूछो एक क्वेश्चन, क्या पूछना है?
सर वो एक क्वेश्चन था कि which of the following sets of forces acting simultaneously on फोर्सेस particle? क्या लिखा है? फोर्सेस, ये वर्ड है Yes, ना sir. बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। और वो वेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन था, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बनाने में। के लिए कुछ भी बना सकता है। वैसे याद रखिए, अगर इक्विलिब्रियम का मतलब हो रहा है कि समेशन ऑफ नेट फोर्स शुड बी जीरो, ये है वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो होना चाहिए, तो इसका मीनिंग है इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम Yes, का मीनिंग है कि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. वैसे ये सारी चीजें फोर्स में पड़ता है। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ। अगर दो वेक्टर्स हैं बेटा, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, और आपसे पूछा गया है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर, तो सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं। क्या करना है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। याद हो गया? क्या करना है? कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है, कुछ नहीं सोचना है आपको। आपको अगर इसका एनालिसिस चेक करना है तो जस्ट सी द थ्योरीज टॉपिक, जो आपको थ्योरीज पढ़ाई गई है सब्ट्रैक्शन की, और आपको रिजल्ट याद रखना है, आपको करना है क्वेश्चंस, तो प्लीज फॉलो दिस फॉर्मूला। दिस इज ए स्क्वायर माइन प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? अरे क्लियर sir. हुआ? चलो इसका देखते हैं, इसका देखते एंगल क्या बनाएगा। अल्फा, अल्फा बनाएगा tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। याद रखेंगे क्या करना है, वहां पर a प्लस बी करते थे, यहां क्या कर देंगे, a माइनस बी कर देंगे। ठीक है, वहां पर क्या करते थे, a प्लस बी करते थे, यहां क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, तो ये रिजल्टेंट एंगल बन जाएगा। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, अब sir. देखो यार, some important points about two vectors, some important points about two vectors। देखिए, अगर वेक्टर ए आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी दिया गया है, सो मैक्सिमम इस आर इज मैक्सिमम, आर तभी मैक्सिमम हो सकता है व्हेन ए एंड बी आर पैरेलल। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। आर तभी मैक्सिमम हो सकता है जब ए और बी दोनों पैरेलल हो, दैट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 0 डिग्री, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 0 डिग्री, एंड आर मैक्सिमम इज इक्वल टू ए प्लस बी। सुनिएगा, आर इज मिनिमम, आर इज मिनिमम, आर तभी मिनिमम हो सकता है when A and B are anti-parallel vector, anti-parallel vector, that is angle between A and B is 180 degree, और उस केस में R मिनिमम आपको कितना मिलता है, A माइनस बी। तो किसी भी रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो R मैक्स से R मिनिमम के बीच में लाएगा। The resultant of two vectors is greater than equal to R minimum and less than equal to R maximum, इसके बीच में ही लाई कर सकता है। Clear my dear friends? Yes, sir. If both vectors are perpendicular to each other, if both vectors are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं मेरे दोस्तों, जैसे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, सो याद रखिए अगर इनका एडिशन हो रहा है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, वो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर बच्चों इनमें एडिशन हो रहा है, एडिशन की जगह वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया है, और वेक्टर आर इज इक्वल टू आपसे पूछा गया है वेक्टर ए माइनस बी, दैट्स रीजन इज दैट कि वेक्टर बी के अपोजिट एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है आपको, वेक्टर बी के अपोजिट एक एंगल ड्रॉ करना है और कुछ नहीं। सो दिस एंगल शुड बी इक्वल टू माइनस बी,
वेक्टर, और यहां पर भी मैग्नीट्यूड यही आएगा, इट्स ए स्क्वायर प्लस बी। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? Yes, बोलो sir. भाई। ओके, थैंक यू सो मच। नाउ लेट अस सी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द चार्जेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ Yes, टू sir. वेक्टर्स। हाँ बोलो। मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स। सो बच्चों किन्हीं भी वेक्टर्स को दो तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। एक होता है बच्चों आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, दिस इज आल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है ना? स्केलर प्रोडक्ट को बच्चों हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। और आपको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, डॉट प्रोडक्ट मींस अगर दो वेक्टर्स, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लगा हो, सो याद रखिएगा ऑलवेज कि ये डॉट प्रोडक्ट है। और डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कैसे करते हैं कि वेक्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, cos थीटा ए। ठीक है ना? का कोसाइन। याद रखिएगा अगर दो वेक्टर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हैं और दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एंड a cosine angle between vector A and vector cross in a cross product, the vector A cross vector B अगर लिखा है, so this is also magnitude of vector A into magnitude of vector B into sin theta. This gives the complete is magnitude. ये पूरा चीज जो लिखा है वो मैग्नीट्यूड देता है, इसके साथ एन कैप जो लगाते हैं वो डायरेक्शन का एनालिसिस कराते हैं। यस सर। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? याद रखिएगा Yes, sir. ए क्रॉस बी अगर कहीं लिखा है आपके लिए, ए क्रॉस बी लिखा है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर, अच्छा वेक्टर के पास क्या क्या होना चाहिए आप खुद ही सोचो कि एक वेक्टर क्या क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड, और स्केलर क्या क्या देना चाहिए? स्केलर के पास क्या होना चाहिए? सिर्फ मैग्नीट्यूड। सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो वेक्टर ए डॉट बी को क्या लिखते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। तो ये क्या दे रहा है? ये सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, ओनली डिफाइन अ मैग्नीट्यूड। बट क्रॉस प्रोडक्ट इट इज द वेक्टर प्रोडक्ट, सो वेक्टर प्रोडक्ट ऑलवेज क्या देना चाहिए बच्चों हम लोगों को? मल्टीप्लीकेशन, मैग्नीट्यूड भी मिलना चाहिए और डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो अगर बच्चा कहीं ऐसे क्रॉस लगा हो ना, ऐसे क्रॉस लगा हो, तो समझ लेना कि वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो कैसे लिखेंगे? मॉड ऑफ वेक्टर ए, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू साइन थीटा। साइन थीटा इज द साइनाइन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये कंप्लीट प्रोडक्ट जो है ना वो किसको डिफाइन कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर रहे हैं। तो अभी तो डायरेक्शन लिखी ही नहीं है ना, into n cap. क्लियर मेरे दोस्तों? n cap is represent a direction. मेरे दोस्तों डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए आपको बस एक ही रूल याद कर रहे हैं, कौन सा? राइट हैंड थंब रूल। क्या है? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में क्या करना होता है? स्ट्रेच योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। सपोज ए और बी, ए क्रॉस बी कर रहे हैं हम, ए क्रॉस बी कराना चाह रहे हैं, ये एंगल थीटा है। सर हमें क्वेश्चन में डायग्राम ऐसे देंगे क्या? हाँ दे भी सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अगर ए क्रॉस बी करा रहे हैं आपको ऐसे कुछ, तो आपको बोलेगा कि भैया स्ट्रेच योर राइट हैंड इन दिस डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। आपको अपना राइट हैंड लेना है और ए डायरेक्शन में स्ट्रेच कराना है एंड कर्व द फिंगर्स टूवर्ड्स बी। आपको फिंगर्स को कर्व्ड करना है टूवर्ड्स बी, तो जिस डायरेक्शन में थंब होगा उसी डायरेक्शन में रिजल्ट ए क्रॉस बी का वेक्टर रिप्रेजेंट होगा। क्लियर माय डियर फ्रेंड? मतलब डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर जो होगा वो किधर की तरफ होगा बच्चों? डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा? थंब। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? वेक्टर ए क्रॉस, हाँ बिल्कुल, पूछो क्या पूछना है, पूछो।
सर हम्म, सर हमें एन कैप की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमने ऑर्थोगोनल मेथड से निकाला था, तो हमें जो उसका आंसर आ रहा था सर वो कुछ ऐसा आ रहा था ना, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप के फॉर्म में आ रहा था ना सर। तो हाँ वो हाँ हाँ। सर वो खुद ही में फुल इंफॉर्मेशन दे रहा है सर, डायरेक्शन का भी। तो वो एन कैप किनके से क्यों बीच का मल्टीप्लाई कर रहे मल्टीप्लाई बेटा, वो किनके बीच का मल्टीप्लाई था? आर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, आर्थोगोनल वेक्टर्स के बीच का मल्टीप्लिकेशन था ना। अगर नॉर्मल वेक्टर्स दे दिए जाते, जैसे कि मैं मान लो, मैं बोलूं कि किसी बॉडी पे लगने वाला फोर्स जो है वो 3 न्यूटन है, ठीक है यार, मैग्नीट्यूड दे दिया मान लो, और ऐसे बोलता हूं, और उसके बीच की डिस्टेंस डी जो है वो 5 न्यूटन, ठीक है बेटा। एंगल बिटवीन एफ और डी जो है वो 37 डिग्री है, ऐसे दे देता हूं। तो आप बताओ टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क। तो आप क्या करोगे, टॉर्क बराबर कितना होता है, डी क्रॉस एफ होता है। कितना होता है, डी क्रॉस एफ। डी क्रॉस एफ का मतलब क्या हो रहा है, एफ इंटू डी इंटू साइन थीटा, यही तो लिखेंगे मैग्नीट्यूड सिर्फ, यस सर। है ना। तो मैग्नीट्यूड तो दिया है 3 × 5 × sin 37, ठीक है बच्चों। 3 × 5 × sin 37 इज 3/5। कितना आंसर आ गया बेटा, कितना आ गया, 9 न्यूटन मीटर। ये क्या आया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है, सिर्फ और सिर्फ कितना आया है, मैग्नीट्यूड। तो अगर आपसे मैं पूछूंगा कितना मैग्नीट्यूड लग रहा है, तो आप तुरंत बोलोगे सर कि 9 न्यूटन पर मीटर, 9 न्यूटन इंटू मीटर का मैग्नीट्यूड लग रहा है। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये टॉर्क की डायरेक्शन किधर, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? क्योंकि ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर तो है नहीं, ये 3D वेक्टर है हाँ क्या, सर, नहीं है। नहीं अब सर। आपको अगर ऐसे बोले कि सर एफ वेक्टर ऐसे हॉरिजेंटली लग रहा है, एफ वेक्टर हॉरिजेंटली लग रहा है, और डी वेक्टर जो है वो इधर की तरफ है, डी वेक्टर इधर की तरफ है, ऐसा दे दे, ये एंगल 37 डिग्री दे दे, ऐसे ही तो देगा। यस सर। तो अब अगर जो आप बड़ी आसानी से टॉर्क बताएंगे तो कैसे बताओगे आप, राइट हैंड थंब रूल ही तो लगाओगे। लो, तो राइट हैंड थंब रूल से क्या बोलोगे, जरा हाथ को स्ट्रेच करो टूवर्ड्स बी, ए एफ वेक्टर, अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करो टूवर्ड्स एफ वेक्टर, कव्ड करो अपनी फिंगर्स को डी वेक्टर की तरफ। देखो थंब किधर इंडिकेट कर रहे हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, बिल्कुल प्लेन से बाहर निकलता हुआ, यस सर। ऐसे है ना। पहले केस में अंदर जा रहा था, इस केस में बाहर आ रहा है। इस केस में नहीं, सॉरी, हाँ इसके आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, डी क्रॉस एफ है ना, सॉरी सॉरी। तो स्ट्रेच योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर, है ना, और उसको उस फिंगर को कवर्ड करो टूवर्ड्स एफ वेक्टर, तो आप देखोगे टूवर्ड्स अंदर की ओर जा रहा होगा, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस सर। अंदर की ओर जाने का मतलब इसका सेंस कैसा है, क्लॉकवाइज सेंस है कि काउंटर क्लॉकवाइज सेंस? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो इस टॉर्क की डायरेक्शन किधर हो गई, क्लॉकवाइज हो गई। बोलो समझ गए? यस अरे सर। समझे, समझ गए सर। जैसे कि ऐसे समझ लेते हैं कि कभी कभी सर मगर ये ऑर्थोगोनल तो यूनिट आपने वेक्टर मैग्नी नहीं, हाँ क्या पूछ रहे हैं? सर मगर ये तो आपने मैग्नीट्यूड से निकाला है, मैग्नीट्यूड से निकाला है ना ये सर आपने। अगर एफ मैग्नीट्यूड से वेक्टर कहाँ अगर निकाला है कुछ ऐसे बच्चे? फॉर्म में दिया हो, हाँ तो 3i कैप प्लस 4j हाँ कैप। तो हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं, आई वाला जे वाला के वाला जो हमने सीखा है हम वही करेंगे यहाँ पर। लेकिन अभी हमें पता नहीं है ना, अभी तो नॉर्मल वेक्टर्स दिए गए ना बच्चा। जब हमें ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर दिए जाएंगे तो फिर हम राइट हैंड थंब रूल का यूज नहीं करेंगे। वही अरे पूछना था सर बस। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन में देता हूं, एक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी क्रॉस बी, एक फॉर्मूला ये भी होता है, V इज द वेलोसिटी एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, B इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा ध्यान से सुनना, एक बात मेरे को बताना है, 2 मिनट मेरी बात सुनना। V क्रॉस B, अगर V किसी भी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल मान, हॉरिजॉन्टल, और B जो है वर्टिकल, वर्टिकल ऐसे समझ लो, B वर्टिकल है, तो बताओ F की डायरेक्शन किधर की तरफ?
एफ की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? सोचो समझो, एफ की डायरेक्शन जो है वो किधर, अंदर की तरफ। मतलब वो इसके हॉरिजॉन्टल के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और वर्टिकल के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा ना। अगर सुनना सुनना सुनना, सुनना। यस सर। ये V है, ये B है, यही तो वो बोल रहा है ना बच्चों? V B यही तो बोल रहा है। ये B वर्टिकल है और V जो है वो हॉरिजॉन्टल है। तो V क्रॉस B कितना आ रहा होगा, जरा ध्यान से सोचो। V क्रॉस B, प्ले ऐसे बाहर की ओर थंब आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा? आप देखो ना, राइट हैंड थंब रूल का यूज करोगे कि नहीं करोगे इस केस में? यस सर। है ना? आ रहे कि नहीं आ रहे? आप देखिए ना, खुद ब खुद देख कर मेरे को बताओ। V, stretch your right hand in the direction of V vector, curve your fingers towards B vector. तो thumb indicate हुआ out of the page. यस सर। यस सर। आना बोलो तो F vectors जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो अब Yes, समझिए ना कब आपको राइट हैंड थंब रूल का यूज करना पड़ रहा है, जब आपको आइडिया ही नहीं हो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में। क्लियर मेरे दोस्तों? ओके। अब जरा ध्यान से 2 Yes, मिनट sir. मेरी बात सुनना। 2 मिनट में एक बात बताता हूं आपको, बहुत अच्छी बात। अगर बच्चों आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करते हो और वो वेक्टर सी आता है, तो हम बोलेंगे, बोल सकते हैं हियर ऑलवेज, ऑलवेज ऐसा ट्रुथ है, 100% ट्रुथ, ऑलवेज वेक्टर सी वेक्टर सी इज perpendicular to वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। याद रखना, अगर ऐसा कहीं लिखा हो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, तो याद रखना वेक्टर सी हमेशा वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर रहने वाला। वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्या रहने वाला है? परपेंडिकुलर रहने वाला है। क्लियर? याद रहेगा। अभी आपने देखा ना, एक एग्जांपल मैंने करा के दिखाया ना, एफ वेक्टर परपेंडिकुलर दिखा कि नहीं दिखा? जो V Yes. और B दोनों के साथ परपेंडिकुलर था। ठीक है बच्चों? चलिए हम बात करते हैं 1 बाय 1 वेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट। दिस इज डॉट मल्टीप्लिकेशन, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में मैंने पहले ही आपको चीज एक समझा दी कि अगर दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो आपको क्या लिखना है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का कॉसाइन है ना। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एक बॉडी पे अगर फोर्स 2 न्यूटन का लग रहा है और वो बॉडी मान लीजिए 10 मीटर डिस्प्लेस होती है और लगने वाला फोर्स जो है वो 37 डिग्री पर लग रहा है, तो बताओ वर्क कितना होगा? वर्क पूछा गया, तो वर्क कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों? वर्क कैसी क्वांटिटी होती है? Scalar. स्केलर क्वांटिटी। तो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एंगल जो है वो 37 डिग्री, ये दिया गया है डायग्राम। तो वर्क डन पूछा गया, तो हमें क्या करना चाहिए भैया? W बराबर सिंपल है, डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, F डॉट D करेंगे। तो W बराबर यहाँ आ जाएगा F D, F का मैग्नीट्यूड, D का मैग्नीट्यूड, F का मैग्नीट्यूड, D का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। मेरे दोस्तों W बराबर F मैग्नीट्यूड इज व्हाट? F magnitude is 2, D is 10, cos 37 is 4/5। तो 5 2 जा 10, कितना आ गया बच्चों? 16 जो। क्लियर मेरे दोस्तों? Yes, sir. आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देख सकते हो, ठीक है। अगर एक दूसरे if both vectors are perpendicular to each other, if both vectors are perpendicular to each other, vectors are perpendicular to each other,
अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज जीरो होता है, ईच अदर। सो A डॉट B शुड बी इक्वल टू 0। याद रखना, अगर कभी भी प्रूफ हो जाए, कभी भी आपको आ जाए कि प्रूफ करो भैया A और B दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो याद रखना कि हमें डॉट प्रोडक्ट लगाना है। अगर ऐसा दिया गया हो लेट अस अज्यूम बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो भी दिमाग में रखना कि डॉट प्रोडक्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। किससे सॉल्व होगा? डॉट प्रोडक्ट से। तो याद रखना, अगर कभी परपेंडिकुलर आपको देखने को मिले सो ऑलवेज यूज अ डॉट प्रोडक्ट। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? करोगे, अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो क्या करोगे बच्चों? A डॉट बी लगाओगे हमेशा, और A डॉट बी हमेशा किसके बराबर होगा बच्चों? 0 के बराबर होगा। क्लियर मेरे दोस्तों? 0. if both vectors are parallel to each other, if both vectors are parallel to each other, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो उनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाता है, each parallel to each other। तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर A डॉट वेक्टर B वो AB के बराबर आ जाता है, AB के बराबर, है ना। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि अगर अपना ही वेक्टर सेल्फ से मल्टीप्लाई हो, वेक्टर A डॉट वेक्टर A लगा दिया जाए, सो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ A वेक्टर। ठीक है ना। जैसे कि i कैप डॉट i कैप करने पर ऑलवेज क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। j डॉट j करने पर आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 1. k डॉट k करने पर आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। व्हाई? because magnitude of I vector, magnitude of j vector, magnitude of k vector, this should be equal to always 1. So 1 into cos 1 0 degree, cos 0, and अपना ही वेक्टर अपने साथ कैसा एंगल बनाएगा? अपना 0 वेक्टर degree. अपने साथ 0 डिग्री बनाएगा, तो 0 डिग्री बनाएगा, इसलिए I डॉट I इज 1, J डॉट J इज 1, K डॉट K इज 1। बट बच्चों, बट याद रखना, अगर I डॉट J हो जाए तो देखो I और J के बीच का एंगल क्या होता है? I और J के बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। degree. तो I डॉट J कितना हो जाएगा बच्चों? दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तो मैंने आपको बताया बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इट्स क्रॉस डॉट प्रोडक्ट इज 0। J 0. डॉट K भी क्या होने वाला है बच्चों? 0। और K डॉट I भी क्या होने वाला है? 0। सिमिलरली अगर J डॉट I लिखे तो भी 0, K डॉट J लिखे तो भी 0, और K डॉट I डॉट K लिखे तो 0। यहां से एक प्रॉपर्टी समझ में आती है कि स्केलर प्रोडक्ट हमेशा कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी मतलब A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट, मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे 2 into 3 करिए या 3 into 2 करिए। क्लियर बच्चों? एक बात और सुन लो, अगर A वेक्टर A ऐसा है A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, और वेक्टर B आपके पास ऐसा है A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप, तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे बच्चों, इनका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे वेक्टर A डॉट वेक्टर B, सो I वाला I के साथ मल्टीप्लाई करिए, सो दिस इज A1 A2, प्लस J वाला J के साथ मल्टीप्लाई करिए तो B1 B2, एंड C वाला C के साथ मल्टीप्लाई करिए, मतलब K वाला K के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो आपको मिलेगा यहाँ पर C1 C2. क्लियर। डॉट प्रोडक्ट में ऑलवेज याद रखना। सपोज दो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर दिए गए हो, वेक्टर A ऐसे दे दिया गया, इट्स अ A1 I कैप प्लस A2 J B1 J कैप प्लस C1 K कैप। ठीक है बच्चों, और आपको वेक्टर B दे दिया गया, वेक्टर B दिया गया है दिस इज A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। मेरे दोस्तों, if find for finding the angle between two vectors, finding the angle between वेक्टर A एंड वेक्टर B, अगर वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल निकालना है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले वेक्टर A का मॉड कैलकुलेट करना है, दिस इज 3A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। इसी तरीके से वेक्टर B का मॉड कैलकुलेट करना है, दिस इज A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर।
मेरे दोस्तों उसके बाद ए वेक्टर का मॉड निकाल लिया, बी वेक्टर का मॉड निकाल लिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो तो a1 a2 b1 b2 c1 c2। नाउ द एंगल के लिए cos थीटा बराबर क्या लिखना है, वेक्टर a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b। इनकी वैल्यूज पुट करके आप यहां निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा मान लो कि वेक्टर a जो है वो आपके पास 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप है, और वेक्टर b जो है वो है आपके पास से मान लो 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। Now the question is asked, what is the value, what is the angle between, find the angle between vector A and vector B। अगर कभी भी A और B के बीच का एंगल निकालना हो तो ऑलवेज यूज अ डॉट प्रोडक्ट। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले वेक्टर A दिया गया है आपको 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। वेक्टर बी आपको दिया गया है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। मेरे दोस्तों सबसे पहले वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालिए। जैसे ही वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। दिस शुड बी इक्वल टू 5√2। सिमिलरली वेक्टर बी का आप मैग्नीट्यूड निकालिए तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। हाउ मच, इट इज ऑल्सो 5√2। ठीक है, दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों निकल आए। आप क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जैसे ही आप करने जा रहे हो, आई वाला आई के साथ 3 into 4 is 12, 4 into 3 is 12, तो 12 plus 25, this should be equal to 49। ठीक है बच्चों, बोलो यस और नो। Yes, sir. अब cos थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, cos थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, a डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड a इंटू मॉड b। तो बच्चों यहाँ पर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 45 डिवाइडेड बाई 5√2 इंटू 5√2, कितना आ गया बच्चा, स्क्वायर रूट ऑफ 49 डिवाइडेड बाई 50। तो cos थीटा इज इक्वल टू आ गया 49 बाई 4.9/5। तो वो थीटा इज इक्वल टू आ गया cos इनवर्स 49 बाई 50। दिस इज योर आंसर। बाकी इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो और आ जाएगा, बट ये आंसर है। तरीका समझ में आया बच्चों, अरे बोलो है ना, कि आपको कैसे करना है क्वेश्चंस को। अगर ए डॉट, अगर एंगल पूछा गया है तो डॉट प्रोडक्ट लगाना है, अगर परपेंडिकुलर दिया गया है तो भी डॉट प्रोडक्ट लगाना है बच्चों, क्लियर। और अगर आपके पास, अब बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। सो लेट अस सी अबाउट डिस्कशन अबाउट वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। सो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, जैसा कि नॉर्मली आप सब लोग जानते हो कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कि वेक्टर आना चाहिए। वेक्टर आने का मीन्स ये है कि वेक्टर का मतलब होता है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए बच्चों, और डायरेक्शन भी हो। तो अब कैसे करते हैं, जो भी आप वेक्टर ड्रॉ कर, जो भी आप वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये जो सी वेक्टर आ रहा है इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड भी होगा। तो कभी भी फॉर्मूला अगर लिखने को आए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो कैसे यूज करते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, दिस कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन गिव्स द ओनली मैग्नीट्यूड। ये क्या देता है, ओनली मैग्नीट्यूड। बट फॉर एंड अगर n कैप लगाते हैं तो n कैप गिव्स द डायरेक्शन, डायरेक्शन देता है। यूनिट वेक्टर ऑलवेज डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए बच्चों हम लोग क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं, थंब रूल। या फिर 10th स्टैंडर्ड में आपने एक और रूल पढ़ा होगा, मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल।
क्रॉक स्क्रू रूल। ठीक है मेरे दोस्तों, ये दोनों एक ही जैसे रूल है। मैं आपको सजेशन दूंगा कि सिर्फ आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करो, बिकॉज इट इज वेरी इजी एंड इट इज वेरी हैंडी। ठीक है, आसान है। क्या होता है, तो एक बात और याद रखिए, यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं। अगर इफ बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल टू, पहले सुनो, अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इफ बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका साइन जो है ये साइन रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर को, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर बच्चों दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो जो ए क्रॉस बी निकालोगे, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ऑलवेज आएगा ए बी के बराबर, ऑलवेज ए बी के बराबर। मॉड ऑफ ए मतलब इनका मैग्नीट्यूड इनटू इनका मैग्नीट्यूड। साइन के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल का। फिलहाल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी के बराबर होगा। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? ओके, और अगर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इफ बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल, इफ बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल, पैरेलल इवन पैरेलल के साथ अगर इवन ये लिखा हो कोलिनियर वेक्टर, ऐसा भी लिखा हो कि बोथ वेक्टर्स आर कोलिनियर पैरेलल वेक्टर, ऐसा कुछ भी दिया हो, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि यार ए क्रॉस बी जिनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो, जिनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो, वो ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि ये दोनों क्या हैं, पैरेलल वेक्टर। इवन पैरेलल हो गया, एंटी पैरेलल हो गया, कोलिनियर हो गया, ये सब एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर मेरे दोस्तों? अगर परपेंडिकुलर होगा तो हम क्या यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। पैरेलल होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, कोलिनियर होंगे, तो ऑलवेज क्या यूज करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखने वाली बात है। आगे देखते हैं। अगर बच्चों अगर इसकी बात करी जाए कि ए डॉट ए क्रॉस ए अगर अपना ही वेक्टर अपने आप से क्रॉस प्रोडक्ट करेगा तो भी ये जीरो के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, अपने साथ अपना खुद का एंगल क्या बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा। तो साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है, इसलिए 0 होता है। ये एक आइडिया ये देता है कि अगर आई डॉट आई क्रॉस आई करा रहे हैं आप, तो ये क्या मिलने वाला है, बताओ बच्चों? आई क्रॉस आई क्या मिलने वाला है, 0। ये एक जैसा ही है ना, आई वाला अपने आई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जे क्रॉस जे भी क्या मिलने वाला है बच्चों, 0 और के क्रॉस के Zero. कैप, के Zero. क्रॉस के Zero. कैप क्या मिलने वाला है, 0। ठीक है, 0 तो ये याद रखिएगा, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के हमेशा 0 होता है। बच्चों एक बात और समझानी है आपको, आप जरा ध्यान से देखते हैं। देखो बच्चों, अगर आई क्रॉस जे होगा, आई क्रॉस जे, तो देखा जाए आई और जे दोनों एक दूसरे के कैसे हैं बच्चों, आई क्रॉस 90. दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये है आई, ये है आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। ठीक है, आपको पता है के कैप जो है वो परपेंडिकुलर आएगा, बाहर की ओर आएगा प्लेन के। आई क्रॉस जे, आई और जे के बीच का एंगल क्या होगा बच्चों, 90 degree. 90 डिग्री। आप सभी जानते हैं कि आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चों, जल्दी बताओ, आई का मैग्नीट्यूड One. कितना, जे का मैग्नीट्यूड और के, इन सबका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अभी मैंने बताया अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका रिजल्टेंट जो है वो ए बी के बराबर होता है कि नहीं होता। तो यहाँ देखो ए बी दोनों मैग्नीट्यूड है, तो आई कैप का 1, जे कैप का 1 इंटू डायरेक्शन के लिए कौन सा वेक्टर आएगा, तो जरा राइट हैंड थंब रूल का यूज करिए आप, देखिए क्या मिलता है। स्ट्रेच योर राइट हैंड इन दिस डायरेक्शन ऑफ आई वेक्टर, कर्व योर फिंगर्स टुवर्ड्स जे वेक्टर, तो आप देखोगे कि बाहर की ओर के कैप की डायरेक्शन में है कि नहीं है, तो क्या मिल Yes, जाएगा, sir. के कैप। तो आपको यहां से मिल गया बच्चों आई क्रॉस जे
किसके बराबर मिल जाएगा, के कैप। इसी तरीके से बताओ बच्चों, जे क्रॉस के किसके बराबर होगा, सोचो और समझो फिर बोलो, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, आई कैप आई कैप, बहुत बढ़िया। और इसी तरीके से बच्चों बताओ, के क्रॉस आई किसके बराबर आया, के क्रॉस आई, जे क्या जे कैप J बहुत बढ़िया। उल्टा करते हैं, अब उल्टा करते हैं, इधर से इधर की ओर जाते हैं। आप मेरे को बताओ, जे क्रॉस आई किसके बराबर होगा, जे क्रॉस आई, के या माइनस के, ध्यान से देखो, माइनस के माइनस के माइनस कैप के ना, कैप। जे क्रॉस आई। आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करके देखिए, थंब जो है वो अंदर की तरफ इंडिकेट कर रहा होगा, Yes. कर रहे हाँ। है ना, Yes, sir. तो माइनस आई कैप। उल्टा करो बच्चों, के क्रॉस जे करो, के क्रॉस जे, माइनस आई कैप। बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार। और के क्रॉस आई करो, के क्रॉस आई तो हो गया माइनस आई जे क्रॉस कैप। के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के करो तो क्या मिलेगा आपको, माइनस माइनस जे कैप। ठीक है। आप ऐसे भी इसको ध्यान रख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो कि बच्चों अगर एक इस तरीके की एक सर्किल बना लो और एक इस तरीके का सर्किल बना लो, ठीक है ना, और इन सर्किल्स को बनाने के बाद आप यहां लिख लो आई जे के। अगर बच्चों आप इस डायरेक्शन में जाना, ये डायरेक्शन होती है काउंटर क्लॉकवाइज सेंस, तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। आई क्रॉस जे क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, Yes, sir. और जे क्रॉस के ऑलवेज क्या मिलेगा बच्चों, आई कैप मिलेगा कि नहीं I मिलेगा, कैप और के क्रॉस आई, के क्रॉस आई आपको क्या देगा, के क्रॉस आई आपको क्या देगा, जे कैप दे देगा। जे कैप अगर इसी तरीके से आप यहां भी नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, आई कैप, दिस इज आई कैप, जे कैप और के कैप। मेरे दोस्तों आप जरा उल्टा जाते हैं, उल्टा जाने का मतलब है सबसे पहले आई क्रॉस के कैप में जाइए आप लोग। जैसे ही आप आई क्रॉस के कैप जाओगे आपको माइनस जे कैप मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो याद रखना अगर क्लॉकवाइज सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, अगर क्लॉक की डायरेक्शन में घूमेंगे तो हमेशा निगेटिव मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, निगेटिव मिलेगा। तो आई क्रॉस के क्या मिल जाएगा, माइनस जे कैप। क्लियर, यस सर। जे क्रॉस के sir. क्या मिल, के क्रॉस जे क्या मिल जाएगा बच्चों, के क्रॉस जे क्या मिल जाएगा, माइनस आई कैप। सिमिलरली जे क्रॉस आई क्या मिल जाएगा, माइनस की कैप मिल जाएगा। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, बोलो यस सर। यस सर, चलिए। क्लियर। अगर बच्चों Yes, दो sir. वेक्टर्स दिए गए हो, दो वेक्टर्स दिए गए हो, वेक्टर A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 की कैप, मेरे दोस्तों, और वेक्टर बी दिया गया हो A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 की कैप। सो याद रखना ऑलवेज इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। अगर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B आप कर रहे हैं तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B करते वक्त एक बात का बस आपको ध्यान रखना है, क्या, एक आपको इस तरीके की दो लाइनें खींचनी, सबसे पहले लिखना आई कैप जे कैप के कैप। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर ए वेक्टर पहले लिखा है तो पहले ए वेक्टर्स के सारे डाटा लिखने होते हैं। तो ए वेक्टर में आई कैप का कॉफिशिएंट क्या, ए है, तो आई कैप के नीचे A1 लिखिए। जे कैप का कॉफिशिएंट B1 है तो B1 लिखिए, और के कैप का कॉफिशिएंट C1 है तो C1 लिखिए। सिमिलरली A2 जब B वेक्टर के बारे में बात करते हैं तो B वेक्टर के लिखते वक्त भी यही काम करते हैं, A2 B2 C2। बेटा लिखना आ गया आप लोगों को, ये लिखना आ गया। अब लिखते वक्त ध्यान रखना है, आई कैप सबसे पहले लिखेंगे, आई कैप, आई कैप लिखते वक्त ब्रैकेट लगाइए, एक बार पॉजिटिव सबसे पहले लीजिए, पॉजिटिव को कभी डोनेट नहीं करते, अंडरस्टूड होता है सेल्फ, ठीक है, तो पॉजिटिव। जैसे ही I1 लिखेंगे आप तो I1 के सामने वाले जो नंबर्स हैं उनको बिल्कुल हाइड कर दीजिए, हाइड 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 हाइड, ठीक है, हाइड कर दीजिए। तो आपको जो भी मिलेगा ना यार, जो भी नंबर बाकी बचे हुए जो नंबर दिख रहे हैं उनका आपको राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, right to left, left to right. So this is B1 C2 minus B2 C1. क्लियर मेरे दोस्तों, फिर सब कुछ वैसा वापस आ जाएगा जैसा है। सब हाथ हटाइए, अपना हिडन जिसके थ्रू भी हिडन किया है वो चीज आप हटा, ठीक है मेरे दोस्तों।
एक बार प्लस होने के बाद दोबारा क्या होना चाहिए, माइनस, दोबारा क्या होना चाहिए, माइनस। जैसे ही माइनस लिखो आप बी वाला टर्म, बिल्कुल जे के सामने वाला टर्म आप हटा दो। जैसे ही हटाओगे आपको जो भी नंबर्स दिख रहे हैं, जो भी नंबर्स या जो वेरिएबल्स दिख रहे हैं उनको देखिए, और उनको देखते ही आप ध्यान रखो क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट माइनस लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट माइनस लेफ्ट टू राइट। सो दिस इज A1 C2 माइनस A2 C1। फिर अपना हाथ हटाओ, जो भी तुम्हारा हाथ है या जिसके थ्रू भी तुमने हिडन किया है वो सब हटा लो। ठीक है बच्चों, हटाते ही आप फिर से देखो के कैप लिखोगे तो प्लस माइनस प्लस के कैप, के कैप लिखा तो जैसे ही बच्चों के कैप लिखा तो के किस कैप के सामने वाला जो भी है ना उसको हटा, ये हाइड हो गया। अब जो नंबर आपको दिख रहा है उसके साथ भी वही काम, राइट टू लेफ्ट माइनस लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट माइनस लेफ्ट टू राइट। सो दिस इज A1 B2 माइनस A2 B1। क्लियर, क्लियर मेरे बच्चों? फिर से सब वैसे Yes, sir. Yes, sir. Clear. लिख दिया। अब ये बन गया हमारे पास वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आप लोग 2 सेकंड रुकते हो, और वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये मान लो है। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट पूछ लिया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, बताओ क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो मेरे दोस्तों बस क्या करना है आपको, आई कैप जे कैप के कैप लगाना है। यहाँ लिखना है 3 4 4 3 5 5, ऐसे करके लिख लिया बच्चों, बोलो। हाँ सर। अब लिखते ही देखो सबसे पहले क्या करेंगे, आई कैप लिखेंगे। आई कैप जैसे ही लिखा, मैं चाहूंगा कि आप लोग करो, आप लोग करो, 1 मिनट लगेगा, करो। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो जब आप इसको देख रहे हो आई कैप लिखते वक्त हमने क्या किया भैया, 3 और 4 हट गए, 4 5 जा 20 माइनस 15। 15. ओके ठीक है, ये फिर माइनस साइन लगाएंगे, माइनस जे कैप। अब क्या होगा, ये वाला गायब हो जाएगा, ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, ये वाला टर्म गायब हो गया, तो ये वाला टर्म हाइड हो गया, है ना, ये वाला टर्म हाइड हो गया। तो बचा क्या, आप सिर्फ बचा क्या, 5 3 जा 15, ऐसे गए माइनस, ऐसे गए माइनस 20। ठीक है भाई, फिर हटाया, हाथ पाथ हटाया तो दिख गया भैया ये 4 था। ठीक है, उसके बाद आ गए प्लस के कैप, के कैप में किया तो ये वाला रफ हो गया, है ना, ये वाला रफ हो गया। तो आप क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 माइनस 16, Minus 9 16. 9 माइनस 16, तो 9 माइनस 16। तो भैया ये कितना बचा, 5 5 कैप, ये माइनस 5j कैप बाहर आ Minus. जाएगा तो प्लस का 5j कैप Plus. और माइनस Yes. 7। Minus जस्ट रेज योर 70. हैंड, जितने बच्चों का ये आंसर है, प्लीज जस्ट रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सो नाउ यू आर completely deserve and learn it. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. This is the complete revision. Thank you so much for attending.